एग्जाम्पल 2.3 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट्स को ये काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप करेगा। तो एग्जाम्पल 2.3 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22 will be discussed in the next class. Please try these questions at home. Okay. Then after I will discuss this. So today we are going to discuss the new topic. This is called equipotential surfaces. Okay. The name itself says equi means, what do you mean by equi? Means equal. And potential, what do you mean by potential? We have studied about this. Okay, work done in bringing unit positive charge from infinity to any point is called potential, है ना? So equipotential, but this is surface. How can you say that the means the surface which have equal potential at every point? ठीक है? These are the such surface which have equal potential or constant value of potential for all points. This type of surface is called equipotential surface. Okay. So an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all points on the surface. For a single charge, potential is given by, हम लोग जानते हैं, potential due to point charge is equals to q upon 4 pi epsilon naught r. Okay, we have studied about this. What is what is potential due to point charge? ठीक है. So आपको क्या करना है कि अगर सपोज किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए, यानी कि पर्टिकुलर चार्ज के लिए मतलब चार्ज को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया. ओके. तो अब इस चार्ज के लिए अगर हम चाहते हैं ये पोटेंशियल जो है सेम हो, तो इन सारी चीजों में से किसको सेम रखना पड़ेगा, आप लोग बताइए. क्या ऐसा चीज को हम लोग कांस्टेंट रख दें कि पोटेंशियल सब जगह पे सेम आएगा, बताइए. आदित्य, आदित्य आप बताइए. यस सर. क्या करना चाहिए बताइए. क्या बोला मैंने, क्वेश्चन क्या पूछा आपको याद है? नहीं सर, नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पे. ओके. आदर्श. यस सर. क्या करना चाहिए बताइए. सर आर को वो लेना चाहिए. यस, वेरी गुड. इसलिए मैं बोलता हूँ आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, आपका दिमाग अच्छा है, बट आप पढ़ाई करते नहीं हैं. ठीक है. तो बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे ने. ठीक है, क्योंकि हमें क्या है कि जो v है, v को हम लोगों को कांस्टेंट रखना है, चार्ज जो है वो फिक्स्ड है. ओके. तो हम लोगों को क्या करना है, अब ये तो देखिए ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. So we are left only with this r. Okay. If we fix this r, yeah, we fix this as a constant value, तो उस कंडीशन में v की जो वैल्यू होगी हर जगह पर सेम होगी. यस और नो? यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए. सो अब हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है. ओके. तो सबसे पहले थोड़ा सा ज्यादा क्लियरली देखने के लिए ये मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट U है एंड ये पॉइंट V है. ठीक है. तो ये सारे जो जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं P Q R S T U V, इन सब का इस प्लस क्यू से डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? बोलिए. सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है. ठीक है. तो अगर r सेम है तो इस P पर जो पोटेंशियल होगा r सेम है, प्लस Q भी सेम है,
So potential at point P, potential at point Q, R, S, T, and U. So potential at all these points will be equal. Okay? Yes or no? Yes or no? Yes. So this is why this surface joining these points P, Q, R, S, T, U, V, okay, and P. तो ये जो surface है, this surface will be equipotential surface. Clear है सबको? Clear है सबको? Equipotential surface, ठीक है. So similarly, we can also again say that the points on the this है ना, this line, this curve, जितने भी पॉइंट्स होंगे यहाँ पर सब के सब इस प्लस क्यू चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे अगर हैं तो इन सारे के सारे पॉइंट्स पर, ठीक है, क्या होगा, सब जगह पे डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा. ओके, okay, so if the distances are equal, then we can say that the potential at all the points will be same and the surface joining all these points will be known as equipotential surface. Okay, got it? So equipotential surfaces means the surface which have equal all the points on that surface, the potential will be same, equal potential. So that type of surface will be called equipotential surface. Okay, so this is the second one, again this is third one, फोर्थ वन. सब जितने भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, जितने भी सरफेसेस नजर आ रहे हैं, सबके सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है. और सबके सब किसकी वजह से हैं, किसकी वजह से हैं, ये जो पूरा आपको ये जो पूरा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा डायग्राम बना, हार की वजह से. ये क्या है, ये क्या है, इस जगह पे, इन सब जगह पे हम लोग क्या फाइंड किए थे अभी, पोटेंशियल. पोटेंशियल, ठीक है. ये पोटेंशियल किसकी वजह से है, चार्ज. चार्ज की वजह से, ठीक है. कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है और पॉइंट चार्ज है, ठीक है. तो पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका नेचर आप लोग अगर पूछेगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन व्हाट विल यू राइट अबाउट, राइट इन द आंसर, क्या लिखेंगे, कैसा आपको दिख रहा है ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे, that the potential is same in each point. It's same at each इस पूरे डायग्राम को एक वर्ड में आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, मैथ्स का वर्ड है ये, मैथ्स का टर्म है. कॉन्सेंट्रिक, हाँ, कॉन्सेंट्रिक, क्या, स्फीयर्स, स्फीयर्स, वेरी गुड, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. बिकॉज हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ये 2 डायमेंशनल नहीं होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है. ओके, सो ये जो आपको कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिख देंगे, बट इट इज नॉट सो, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर along XYZ axis. Okay, so this is 3 dimensional and that's why these are not circles, these are spheres. So we can say that the equipotential surfaces of a single point charge are concentric spherical surfaces centered at that charge. Okay, समझ में आ गया सबको. So these are concentric spheres. Okay, and these electric field lines will be radially outwards
everywhere. We have studied about this in chapter 1. Okay, these electric field lines like this. Okay. Now similarly, can you say that what will be the equipotential surface due to negative charge? कैसा होगा? Invert. इन्वर्ट? क्या इन्वर्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट होगा. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट. मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्वर्ट होगा इस तरह से. तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? अगर ये माइनस चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का नेचर कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होगा या कुछ और होगा? बोलिए. अरे सिंपल है ना, सब जगह पे क्या है? पोटेंशियल हर जगह पे नेगेटिव होगा. सिर्फ यहाँ पर प्लस क्यू की जगह क्या होगा? माइनस क्यू होगा. डिस्टेंस सेम है, बस चार्ज तो माइनस क्यू है. हाँ? तो अगेन इट विल बी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, बट the direction of electric field will be radially inward. Got it? Yes or no? Yes, sir. ठीक है. चलिए नेक्स्ट. अगर आपसे मैं पूछूं, इसमें आपको नहीं दिया हुआ है, पहले चलिए इसको डिस्कस कर देते हैं. अगर सपोज ये वाला आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस में ये पूछा हुआ है कई बार कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी भी 1-2 साल पहले, ये शायद लास्ट ईयर ही 2019 में शायद ये पूछा था. ठीक है, लास्ट ईयर कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैंने पहले ही बता दिया है. दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इस तरह से. तो इसमें आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर ले रहे हैं तो इस तरह से अगर आप ये जो लाइन बनाएंगे है ना, इस जगह पर, क्योंकि सब जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होगा. ठीक है, तो ये जो एक इस तरह से जो सरफेस आप यहाँ से कट करेंगे एक लाइन ऐसे. ठीक है, तो ये जो सरफेस कट करेंगे तो आपका कुछ इस तरह का एक रेक्टेंगुलर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक आपका कट के गिरेगा. ठीक है, तो इस तरह से ये सब जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं आपको. ओके, समझ आ रहा है? बिकॉज दिस लाइन all the surfaces joining this line, all the points joining this line, okay, will have equal potential. Therefore, this surface will be equipotential surface. So यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इस तरह का होगा. काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक. ठीक है, और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट. ठीक है, समझ गए? तो इसको ध्यान से समझते चलिए. कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? पॉजिटिव चार्ज की वजह से समझ में आ गया कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से समझ में आ गया, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसा हुआ ये समझ में आ गया सबको. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस. चलिए, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर. अब ये देखिए, एक लाइन चार्ज हम लोग बनाते हैं. कैसा? गॉस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन था आपका. ठीक है, सपोज दिस इज अ infinitely long positive charge, linear charge. Okay, so draw the equipotential surface for this linear charge. Can we draw the equipotential surface for linear charge? This कैसा होगा आप लोग सोच सकते हैं? आर्यन बताइए, आप बताइए. आर्यन कहाँ चले गया हूँ? सर हूँ क्लास में. हाँ बताइए कैसा होगा. प्रांजलि? Yes, sir. कुछ बताइए कैसा होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस. नंदिनी?
Yes, sir. How should be the nature of equipotential surface for this linear charge? जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो बता देंगे सही आंसर। हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं सब। तो यश आप बताइए। Sir, principle of superposition. इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों लगाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस आई एम आस्किंग ना। So यश, Yes, sir. what should be the nature of equipotential surface? Sir, perpendicular to the electric field. Yes, perpendicular to electric field, but shape क्या होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। थोड़ा सा उसको आप गैस नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिन कीजिए ना। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे ये देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, इस तरह से होगा। ये सब जो मैं दिखा रहा हूँ, ऑल दीज लाइन्स आर शोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके, दीज लाइन्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ओके। So the potential at point this, because these all are uniform electric field, so potential at these point, this point, this point, this point, this point, all these points, at all these points the potential will be same. Similarly at all these points the potential will be same, okay. So can we say that the line joining all these points will have same potential on left side or as well as right side? Okay, so if we join these all the surfaces, so we will get a shape. Which shape is it? Cylinder. Cylinder, yes, very good, ठीक है। Because और इसको आप जैसे, क्योंकि क्या है, आप इसको इमेजिन कीजिए ना, एक लीनियर चार्ज है, ठीक है। आप जस्ट एक अपने हाथ में एक छड़ी ले लीजिए, सपोज स्टिक, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। अब उसकी वजह से लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ में क्या होगा? दोनों तरफ में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक। जैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे ना हम लोग चैप्टर 1 में इससे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में आपका क्या होगा? इक्वल, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होंगी। और उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां जहां पर सब जगह पे फील्ड लाइंस सेम है, उन सारे ढेर सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए तो पोटेंशियल देगा आपको, इक्वल पोटेंशियल, ठीक है। तो उन सारे सरफेसेस को आप अगर इमेजिन कीजिए तो एक साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो एक सिलेंडर टाइप का इमेजिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है 3 डायमेंशनल में? बिकॉज लाइन हो नहीं सकता, सरफेस है तो वो 3 डायमेंशनल ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3 डायमेंशन है तो लाइन नहीं हो सकता। तो दोनों साइड में लाइन है तो उसको आप ज्वाइन करेंगे तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? सिलेंडर। समझ में आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? तो लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। एनी प्रॉब्लम यहां तक में? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। No, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का डायग्राम जो अक्सर पूछा जाता है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ से बाहर चलते हैं, ठीक है। इसको, ये सबसे एक तरह से अगर कहा जाए काफी टफ है इसको समझाना, और मैं कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। एनसीईआरटी में कितना सिंपल दे रखा है कि कहाँ गया, ये आपको दे रखा है, मैं आपको बस बोल दूं कि हाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी जो मैं बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, तो वो उनके पास याद करने का ही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो वो याद कर लीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज जिनको समझ में आ रहा है वो इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए हम डायपोल की वजह से यहाँ पर सपोज एक डायपोल का निर्माण करते हैं। पहले एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पर एक इस जगह रख देते हैं नेगेटिव चार्ज। ओके, अब यहाँ से हम लोग, ये डायपोल बन गया हमारा। अब यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। बहुत सारे ऐसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ये यहाँ पर। और हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस, लाइकवाइज। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इसको समझना काफी थोड़ा सा टफ है कि कैसे इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। ठीक है, तो जस्ट आप यहाँ पर सबसे पहले एक पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं इस दोनों डायपोल के बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट P पर। ओके, तो डायपोल है तो हम लोग जानते हैं ये जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। तो इस प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं? What will be the value of potential at point P due to dipole? Anyone? Anyone? 2aq। भाई डायपोल मोमेंट नहीं पूछ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा हूँ। 0। जीरो? कौन था ये जीरो बोलने वाला? कौन बोला जीरो? सर गीतिका। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्यों जीरो क्यों होगा? क्योंकि प्लस Q चार्ज की वजह से क्या होता है, KQ अपॉन A, ये डिस्टेंस कितना होगा, A होगा, है ना। और माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, माइनस टाइम्स K इंटू माइनस Q अपॉन में A। और ये दोनों क्या होगा, कैंसल आउट होकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट कितना होगा, 0। आई बात समझ में सबको? यस सर। तो सिंपल था। ठीक है, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, इस जगह पर ये P पॉइंट कहाँ है, मतलब P पॉइंट के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे। ठीक है, पहले हम लोग ऊपर मान लेते हैं। तो ऊपर भी आप देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, यस और नो? कल भी हम लोग पढ़े थे ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट अगर होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, यस और नो? बोलिए। यस सर। तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सेम वे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, सेम वे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, बिकॉज ऑल दिस डिस्टेंसेस आर इक्वल। गॉट इट? सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन सारे पॉइंट्स पर 0 होगा, यानी कि जब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपको देखिए ये जो डायपोल है ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो जो डायपोल की वजह से जो मैंने इसको माइनस Q, चलिए इसको मैं अपना भी फिगर में ऐसे ही बना लूंगा, इधर लेफ्ट साइड में माइनस डाल देंगे। ठीक है तो इस जगह देखिए दोनों के बीच में कोई भी पोटेंशियल सरफेस नहीं है सेंटर पे, यस और नो? समझ आ गया सबको? इसलिए जब हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो बीच में खाली छोड़ेंगे। बीच में खाली छोड़ने का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? बिकॉज देयर इज नो एनी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है, यहाँ पर माइनस चार्ज लिया तो मैं भी माइनस ले लेता हूँ और इसको प्लस कर दूंगा। ठीक है, ताकि ये आपको समझने में दिक्कत ना हो। दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ठीक है, तो डायग्राम मेरा जो एरोज है, एरोज को आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, या नहीं तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, नहीं तो फिर से डायग्राम सारा चेंज करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर वहाँ हम लोग माइनस प्लस वाला वहाँ
सेट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो सारा एरो चेंज करना पड़ जाएगा। चलिए ये था हमारा डायपोल। अब हम लोग सपोज ऐसा करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं कहाँ पे, कुछ इधर की तरफ, ठीक है, इस जगह Q प्लस Q चार्ज के तरफ, ठीक है। तो प्लस Q चार्ज की वजह से इस जगह पॉइंट P पर अगर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते हैं तो ये डिस्टेंस, और यहाँ से हमारा कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस एंड ड्यू टू माइनस, ठीक है। दोनों का जब हम लोग प्लस करेंगे तो जीरो तो नहीं होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, हाँ? जीरो होगा क्या, बोलिए, जीरो होगा क्या? अरे ये देखिए, इससे क्योंकि हमारा क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, तो क्यू तो दोनों का सेम है। इस वाले का डिस्टेंस छोटा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ये डिस्टेंस बड़ा है तो इसका, ये डिस्टेंस बड़ा है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। तो कुछ ना कुछ आपको पोटेंशियल मिलेगा, जीरो तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। अब समझिए इस बात को कि इस पॉइंट पर जब हम लोग पोटेंशियल बना रहे हैं, तो कुछ मान लीजिए, सपोज हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि 10 वोल्ट पोटेंशियल है, सपोज कितना मान लें, 10 वोल्ट, कुछ भी एक एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट टोटल पोटेंशियल है, यानी ये वाला, ठीक। तो अब मान लीजिए सपोज कि प्लस वाले की वजह से 15 वोल्ट आ रहा होगा, तो माइनस वाले की वजह से कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए पोटेंशियल। समझ नहीं आया? ये 15 दे रहा है तो इसको 5 करना पड़ेगा, तभी तो होगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको इसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा और नेगेटिव वाले की वजह से पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। उसी तरह से आप सेम वे यहाँ पर अगर बात कर लें, इधर की तरफ, है ना, इस जगह, इधर कहीं पे, यहाँ, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, इसी तरह से होगा कि ये डिस्टेंस जो है हमारा कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहा है, ये इस डिस्टेंस की वजह से, और ये डिस्टेंस आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पोटेंशियल देगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पर कुछ पोटेंशियल देगा, और सेम पोटेंशियल यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, ठीक है, उधर की तरफ पोटेंशियल ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम में आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। ये जो देखिए पॉजिटिव चार्ज में है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना है। अभी आप बोल रहे थे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है, बट यहाँ आप देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स नहीं है, ठीक है। इसका जो झुकाव है वो इस साइड में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस जगह देखिए यहाँ पर ये जो है इस तरह से गैप जो है कम है, और इधर की तरफ देखिए गैप क्या है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा गैप होने का मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग को ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी हमने देखा v इक्वल्स टू v ड्यू टू प्लस प्लस v ड्यू टू माइनस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम लोग को अगर सेम पोटेंशियल करना है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को नेगेटिव चार्ज वाला डिस्टेंस तो ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से बढ़ाना पड़ेगा डिस्टेंस को, तभी जाके ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंपनसेट करेंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई इस डिस्टेंस को, नेगेटिव वाले डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ा है हम लोगों को, ठीक है, कि इधर ये वाला जो है डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसकी वजह से, और यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस, ये दोनों कंपनसेट करके एक आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा, ठीक है। इस साइड में नजदीक नजदीक रहेंगे क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ठीक है, आपस में कंपनसेट करके इक्विपोटेंशियल देगा। लेकिन इस साइड में अगर जाए हम लोग यहाँ पर, तो इसकी वजह से तो वो सेम है, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो पोटेंशियल कम होगा। पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए डिस्टेंस को क्या किया है, कम किया हुआ है,
ठीक है। तो इस वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को ये अपना नेचर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो है कंपनसेट कर रहा है। नेगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इधर की तरफ गैप बढ़ता है दोनों साइड में, दोनों के राइट, इधर पॉजिटिव के राइट में और नेगेटिव के लेफ्ट में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है। ठीक, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा इसके बारे में आइडिया। और अगर 100% नहीं आया तो मैं एक बार आप लोग पहले अपने से इसको कोशिश कीजिएगा, जो भी मैं बोलना चाहा। अगर उसके बाद भी नहीं आता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये कर्व जो है इस तरह से क्यों बनता जा रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स क्यों नहीं होके ये जो है चिपक रहे हैं एक दूसरे के पास, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही था कि दोनों की वजह से कंट्रीब्यूट करके आपको सेम पोटेंशियल लाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिगर बनाना है, ठीक। और इसी तरह से आपको ये भी सोचना है, ये देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो अगेन इट इज नॉट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, दे हैव सम डिस्टॉर्शन, ठीक है। एंड ये डिस्टॉर्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको आपको थोड़ा सा सोच के रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस डायग्राम, दोनों डायग्राम को मैं फिर से डिस्कस करूंगा आपको और ज्यादा क्लियर करने के पहले आप लोग सोचेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम लोग इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस करेंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जा सकते हैं, थैंक यू।